Getting to know Sahaja Yoga, and thanks to Shri Mataji Nirmala Devi who developed Sahaja Yoga, we got to know Indian culture and Indian. नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में योग धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ्रांस, यूक्रेन, रसिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया के सभी सहयोगी उपस्थित So we रहे। use Indian music in Sahaja Yoga meditation because this is our tool for balancing ourselves. So we start to do this music to be able to meditate deeply. So we use different songs like Rama, Krishna and Ganesha songs because all these deities are inside us. In every our chakra there are some deity and different positive quality which this deity has. So by singing these bhajans with this music and with the connection through our kundalini with the whole providing power, we can enlighten different positive quality within us through this connection to the Indian deities. What do you know about Lord Rama? I know a lot about Lord Rama, about Ramayana and all this story, and this is a really long topic, yes. But in Sahaja Yoga, we have three like energy hearts. So not only left side. So the Rama for us, it's Lord Rama is on the right, so on the right heart. So it's the quality is dignity, responsibility, and so on. Your good name? My name is Anya. Are you from? I'm from Russia. भारतीय कलाकारों के साथ आज आपके सामने भजन, नृत्य और कव्वाली की प्रस्तुति कर रहे हैं। यह योगधारा टीम जिसमें आप विदेशी भाई बहन देख रहे हैं, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी की कृपा से जो देश विदेश जाकर जिन्होंने अमन का, प्रेम का और शांति का संदेश दिया, वही भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य क्या है उनको सिखाया और आज विदेशी भाई बहन उसी कारण यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को ध्यान धारणा सिखाना चाहते हैं। सहज योग, सह माने साथ में, ज में जन्मा हुआ, आपके साथ जो शक्ति जन्मी हुई है उसको सहज योग कहते हैं। श्री माता जी इसकी फाउंडर हैं जिन्होंने 21 मार्च 1923 में इसकी शुरुआत करी। छिंदवाड़ा में उनका जन्म हुआ। ये विदेशी भाई बहन ये अपने पैसों से यहाँ स्वयं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यहाँ पर भारत में आकर हमें ध्यान धारणा सिखाना और हम सहयोग के माध्यम से अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताने आए हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हमारी ही संस्कृति, हमारी ही परंपराएं, हमारे विदेशी भाई बहन हमें दोबारा याद दिला रहे हैं। इसका हमें बहुत गर्व है। हमारा भारत देश बहुत महान है। भारत की धरा से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र का जब उद्घोष होता है तो सारे विश्व में सनातन संस्कृति का उद्घोष होता है। और भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व के अनेक देश सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित है। और आज उज्जैन के अंदर सहज योग धारा के जो कार्यक्रम माता जी की इस पुण्य अवसर पर जो यहाँ के आयोजकों ने किया है, यहाँ विदेश के लोग भी राम धारा, राम भजन का जो भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सारा विश्व सनातन संस्कृति को स्वीकार करने के लिए अग्रसर है और उस दिशा में आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। Music, classical music, bhajans, kavalis, and it inspired us a lot because we got to know that all Indian music is based on ragas, on like classical music, and we feel very good energy flowing when we sing Indian music. And Indian music, all of it what we sing is about gods, so our attention automatically goes to gods, goddesses, and that is why when we also sing Indian music in Austria, in Europe, and different countries where people don't know Hindi, Marathi or Sanskrit, they still feel this energy flowing and energy that we address the God Almighty, the all-pervading power, and they open their hearts. And actually, although they don't understand abroad of India the language, but they take this music very well, and we travel with concerts worldwide with these bhajans and kavalis. My name is Elena. I'm from Ukraine, currently living in Austria. ऐसी देश विदेश की रोचक जानकारियों के लिए हमारे न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि सभी खबरें आप तक मिलती रहें। हमें न्यूज पहुंचाने के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी कमेंट का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।